Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you the crystal field stabilization energy. Before that, if you're new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. And also, if you like your video, do press the like button. Now let's get started. Now this video is about certain basic concepts which I completely believe that it is very important to deliver these concepts to the students क्योंकि यही पे students को problem होते हैं. Students को बहुत बेसिक नॉलेज में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं और वो क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ जब मैंने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किए थे over there, I actually explained you the crystal field theory. So if you want to know them even better, so go to the playlist of Chem Pacific and search for coordination compounds, and over there you will find all the videos to watch them. Now मैंने आप लोगों को एक बात कहा था कि CFT crystal field theory. In crystal field theory you have the ligands and the metals. Over there the ligands are considered to be the point negative charge and metals are considered to be the point positive charge. That is why there exists repulsion and attraction. Repulsion is taking place between the ligands and the d orbitals of the ligands, and attraction is taking place between the ligands and the nucleus of the metal. Obviously, complex formation होने के लिए attraction is more than that of the repulsion, and that is where the complex formation is taking place. And also, I also informed you about the sign. Negative sign. In the case of inorganic chemistry, the negative sign indicates the stabilization. And the positive sign indicates the destabilization, which is high in energy. Of course, complex formation होने के लिए वो complex stabilization attain करते हैं. इसीलिए अब हमेशा देखना कि CFE से जब आप calculate करोगे, mostly the answers are going to be negative sign. क्यों? इसका मतलब ये है that complex formation होने से वो complex stability attain किया है. That is why उसका side negative है. Clear to all of you? Now students, जब हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है इसका जो वैल्यू दिए गया है ये है -0.4 डेल्टा 0 और इसका जो वैल्यू दिए गया है वो है +0.6 डेल्टा 0. ऐसा क्यों है? साइंस में ना हर एक चीज़ का आप याद रखना, साइंस में एवरी सिंगल थिंग जो है उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ साइंस. ठीक है, तो ऐसा क्यों है पहले हम वो जान लेते हैं. देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होता है कि ये आप जानते हो, दिस इज T2G. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाई, हाउ, सो टू चेक आउट दोज अर्लियर वीडियोस एज वेल. सो ये जो T2G है, दिस कैन accumulate maximum up to 6 electrons. Clear? And ये जो EG है, this can accumulate maximum up to 4 electrons. अगर आप T2G का CFSE कैलकुलेट करते हो, the CFSE of T2G, तो आप देखेंगे it can accumulate maximum to how many number of electrons? 6, which is having the energy -0.4 delta 0. तो कितना हो गया इसका वैल्यू? -2.4 delta 0. Over there, I again repeat that minus sign is indicating stabilization. When the orbitals are below the barycenter, so this is your barycenter. So this is your barycenter. So when the orbitals are below the barycenter, it means the orbitals are stabilized, the orbitals are lower in energy, and then they're indicated by the negative sign. When it is above the barycenter, तो फिर the orbitals are destabilized and higher in energy and they depicted by the positive sign. तो अगर आप EG का CFSE कैलकुलेट करते हो तो आपको कितना मिलेंगे? यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और ये एनर्जी कितना है? +0.6 डेल्टा 0. तो कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू +2.4 डेल्टा 0. देखो, तो आई होप अभी आप लोग खुद ही समझ जाओगे. जब
ये तीन ऑर्बिटल्स होगा T2G, ये बैरिसेंटर से जितना स्टेबिलाइज्ड हुआ, कितना, -2.4 डेल्टा 0। ये दो ऑर्बिटल EG, ये बैरिसेंटर से उतना ही डिस्टेबिलाइज्ड हुआ। ऑलवेज कीप इट इन माइंड। इसीलिए इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किए गए हैं, और साइन एवरी सिंगल थिंग will definitely give you some sort of explanation and you must understand them and then only you are understanding the signs। ठीक है, सो ये T2G बैरिसेंटर से जितना स्टेबिलाइज्ड होते हैं, ये EG बैरिसेंटर से उतना ही डिस्टेबिलाइज्ड होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया इज अ स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। एंड ऑल्सो स्प्लिटिंग, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, स्प्लिटिंग क्यों होते हैं बहुत अच्छे से समझो। इसीलिए तो Z इन Z आउट में स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं। कोई भी लिगैंड जब कोई मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, इट इज एक्सपीरियंसिंग बोथ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, and in order जो repulsion हो रहा है, in order to overcome the repulsion, the d orbitals they are getting splitted। splitting होने की वजह से कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलाइजेशन अटेंड होते हैं। ठीक है, इसीलिए CFSE कोई भी कॉम्प्लेक्स में अगर आप करते हो कैलकुलेट, तो क्या हो जाएंगे, आप देखेंगे वो नेगेटिव साइन में आ जाते हैं, बिकॉज which indicates that stability has been attained। तो ओवरऑल अगर आप CFSE ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का CFSE करते हो, ओवरऑल अगर आप कॉम्प्लेक्स का CFSE कैलकुलेट करते हो, तो कितना हो गया आपका, +2.4 डेल्टा 0 -2.4 डेल्टा 0 विच इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटली जो CFSE होता है, जो हाफ फिल्ड होगा और फुल फिल्ड होगा, उसका CFSE हमेशा 0 ही होगा ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मीन पेयरिंग एनर्जी। मीन पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से रिपेल ईच अदर, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपको सेम ऑर्बिटल में पेयर अप करना है। इट मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द टू इलेक्ट्रॉन्स। सो मीन पेयरिंग एनर्जी मतलब जितना एनर्जी आपको जरूरत होता है टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स against the electron repulsion in the same orbital। सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे हम डिफाइन करते हैं एज द मीन पेयरिंग एनर्जी। एंड वी विल आल्सो नोटिस, एंड वन मोर इंफॉर्मेशन इज देयर, अगर CFSE जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, इफ CFSE is greater than the pairing energy, then the electrons will tend to pair up and the complexes क्या हो जाएंगे, they are low spin complexes and the electrons will tend to pair, pairing start हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा 0 is less than pairing energy, the electrons will remain unpaired, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं high spin complexes। Clear students? Now let us understand how to calculate the CFSE। आप बोलेंगे आपको पता है, लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ पे एक छोटे से कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक D4 का मैं कर लेती हूँ। D4 जब वो d ऑर्बिटल में थे, सो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल दे वेर ऑल unpaired following the Hund's rule। So this is your T2G, which is having the energy of -0.4 delta 0, and this is your EG, this is having energy of what, +0.6 delta 0। तो जब वो हाई स्पिन, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो कंसीडर दिस वन टू बी हाई स्पिन एंड दिस वन टू बी ऑफ लो स्पिन। जो हाई स्पिन है तो वहाँ पे पेयरिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो सारे जो 3 होने के बाद जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है वो चले जाते हैं EG में। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप इसका CFSE कैलकुलेट करते हो तो कितने मिलेंगे। T2G is considered of how many electrons? 3। So having 3 which is possessing the energy of 0.4 delta 0, ठीक है, plus EG में how many electrons there? 8, which is having the energy of +0.6 delta 0। So this will turn out to be, अगर आप कैलकुलेट करते हो ये हो जाएंगे -0.6 डेल्टा 0। तो देखा CFSE हमेशा नेगेटिव में आते हैं, मतलब स्टेबिलाइज्ड है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद भी ये स्टेबिलाइज्ड है। नाउ व्हाट हैपेंस जब वो लो स्पिन में हो जाते हैं, तो पहले अप्लाइंग हुन्स रूल ऑल ऑफ देम वेर
अनपेयर्ड, तो फिर अभी लो स्पिन में हो जाएंगे। कब लो स्पिन में होगा? जब डेल्टा 0 इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। ये भी मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके 2 प्रॉब्लम्स करवाऊंगी, सो एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो यहाँ पे है आपका D4 1 2 3, पहले ये अप्लाइंग द हुन्स रूल, ये पहले सिंगली ऑक्यूपाइड ही होंगे। उसके बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, रादर देन गोइंग अप टू द Eg, it will tend to pair up because in this case the delta 0 is greater than the pairing energy, तो यहाँ पे ये paired up हो जाएंगे। ना इसका CFSE हम कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा? दिस इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4, हैविंग एनर्जी -0.4 डेल्टा 0, और एक इलेक्ट्रॉन को हमने पेयर्ड किया, इसलिए इसमें एक ही पेयरिंग एनर्जी आएंगे, तो दिस टर्न्स आउट टू बी -1.6 डेल्टा 0 प्लस P। ठीक है, P इज इंडिकेटिंग दैट one electron has been paired with the other, so one pair of electrons you are having over here। तो आपको समझ में आ गया कि प्लस P हम कैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं। देखो वो कैसे करते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो D6 का करते हो तो आपको क्लियर हो जाएंगे, दिस इज योर हाई स्पिन एंड दिस इज योर लो स्पिन। जब D6 थे, अप्लाइंग द हुन्स रूल, d ऑर्बिटल में कैसे थे? 3 4 5, ठीक है, और 6th ऑर्बिटल पेयर्ड फॉर्म में थे। 6th ऑर्बिटल कैसे थे? पेयर्ड फॉर्म में थे। नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो हम हाई स्पिन में कैसे करेंगे, 1 2 3, तो ऊपर चले जाएंगे क्योंकि पेयर्ड अप नहीं होता है, 4 5, and the 6th will now get paired lastly, so this is your T2G and this is your EG। तो this is very interesting। तो इसका CFSE कैसे होगा? T2G में you are having 4 electrons with the energy of -0.4 delta 0, and EG में you are having 2 electrons having the energy plus 0.6 delta 0। ना क्या इसमें पेयरिंग एनर्जी प्लस P? आप बोलेंगे हाँ मैडम, या तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो हम प्लस P लेंगे, नहीं, मुझे पता है आप यहाँ पे गलती करते हो, नहीं लेंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का डेफिनेशन क्या था? इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए हमें जितना एनर्जी चाहिए, लेकिन देखो इनिशियल लेवल पे आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, तो कोई एनर्जी या एफर्ट नहीं डाला गया है इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए। समझ में आया? कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या एफर्ट नहीं डाला गया क्योंकि ऑलरेडी एक पेयर्ड फॉर्म में ही थे, तो इसलिए हम प्लस P नहीं लिखेंगे और इसका वैल्यू आ जाएंगे आपको -0.4 डेल्टा 0। क्लियर? नाउ लेट अस कैलकुलेट द लो स्पिन। लो स्पिन में ये है आपका Eg, ये है आपका T2G। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? 1 2 3 4 5 6 1 विल गेट पेयर्ड अप। नाउ T2G जो है, इसका अगर CFSE आप कैलकुलेट करते हो, ये जो है ये पेयर्ड फॉर्म में हो जाएंगे, 1 2 3, आफ्टर दिस इज डन दे विल टेंड टू पेयर अप बिकॉज इन दिस केस डेल्टा 0 इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी, राइट। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 6, हैविंग द एनर्जी -0.4 डेल्टा 0। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी एक पेयर था, तो मैंने सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग किया है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा कितना पेयरिंग किया? 1, इसलिए यहाँ पे प्लस P होगा, 2P नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे टोटल 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2P प्लस 2P हो जाएगा, सॉरी, तो 3P नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं यहाँ पे 3 पेयर है तो हम 3P लिखते हैं, ये गलत है। आपका ऑलरेडी एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, जब आप उसे CFSE कैलकुलेट कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड है तो उसे हम कोई एफर्ट नहीं डाल रहे पेयर करने के लिए, हम बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इसे 2P लिख रहे हैं, नॉट 3P, ऑलवेज रिमेंबर। सो दिस इज -2.4 डेल्टा 0 प्लस 2P। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे दैट इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हाट हैपेंस।
Tetrahedral complexes are always high spin complexes because in this case, the crystal field stabilization is energy is enough less because the number one, there are less number of ligands. In the octahedral you are having 6 ligands, यहाँ पे 4 ligands. So less the ligands, less the attraction, and less is the CFSE. And in the case of tetrahedral complexes, none of the ligands are approaching exactly head to head with the ऑर्बिटल्स. दैट इज वाई वहां पे भी आपका 2/3 फिर से कम हो जाता है. सो हम जानते हैं दैट डेल्टा 0 इज इक्वल टू 4/9. आई एम सॉरी, delta t is equal to 4/9 of delta 0. It means delta t का CFSE हमेशा कम होता है, and that is why CFSE इतना कम हो जाता है that it cannot afford pairing. That is why tetrahedral complexes are always, remember, high spin complexes. तो tetrahedral के लिए हमेशा हमें ये रिमेंबर करना है, दे आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डू ऑन स्पिनल्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. बहुत अच्छे से देखो. तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं D4 का, ठीक है, दैट इज ऑफ टेट्राहेड्रल. तो पहले क्या था 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4. यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है -0.6 डेल्टा टी. सेम एक्सप्लेनेशन आप करके देखो, कंप्लीटली इन दोनों को फिल करके देखो, ये आपको ओवरऑल CFSE 0 ही आएंगे अगर आप कंप्लीटली डिटेल करके फिल करके कैलकुलेट करते हो. और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी ये ऊपर चला जाता है 0.4 डेल्टा टी. नाउ वन मोर इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव यू. ध्यान रखना ये क्या है, डेल्टा टी है, क्योंकि हम इसका कर रहे हैं, हम टेट्राहेड्रल का CFSE कर रहे हैं. जब टेट्राहेड्रल करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा टी होना चाहिए, डेल्टा 0 नहीं. स्टूडेंट्स यहाँ पर भी गलत करते हैं, तो नहीं करना है. अभी आप समझ गए हो. तो CFSE अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये क्या हो जाएंगे, यू सी इन द केस ऑफ द, यहाँ पे ये हो गया आपका E. यू नो वाई इज दिस जेरो सब्सक्रिप्ट नाउ not used, I already explained you, and this is your T2. So E is having how many electrons? 2 electrons, and having the energy of minus 0.6 of delta T, right? And T2 is having 2 electrons and with an energy of plus 0.4 delta T. तो इसे अगर आप कैलकुलेट करते हो, दिस विल टर्न आउट टू बी -1.2 डेल्टा टी प्लस 0.8 डेल्टा टी. और इसे अगर आप कैलकुलेट करते हो ये आ जाएंगे -0.4 डेल्टा टी. नाउ जब स्पिनल्स अप करोगे, ठीक है, आप हमेशा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि कोई भी चीज जब कंपैरिजन में आते हैं तब क्या होता है, तब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. तो जब आप स्पिनल्स करोगे आपको डेल्टा टी को डेल्टा 0 में कन्वर्ट करना है, एंड वी नो दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा 0. क्लियर? वी नो दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू हाउ मच, 4/9 ऑफ डेल्टा 0. So this will turn out to be minus 0.18 delta 0. Now let us solve some problems based on this. I have chosen one problem for you. Just मैंने ये proof करने के लिए आप लोगों को ये problem दिया है that अगर आपका delta 0 is less than pairing energy, then what will happen? Then high spin होता है. और अगर delta 0 is more than the pairing energy, then low spin takes place. तो वो हम numerically calculate करके देखते हैं कैसे होता है. तो एक problem मैंने दिया है, that is, this is the problem number 1. एक complex है CrH2O6 2 plus. इसका mean pairing energy का value दिया है कितना, 23500 centimeter inverse, and delta 0 का value दिया है 13900 centimeter inverse. So let's note it down. So they have given you the value. The given values are, for the pairing energy it is 23500 centimeter inverse, and the delta 0 value that they have given is 13900 centimeter
inverse. Clear? Now see students, CR2 plus. So CR2 plus is having D4 configuration. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हाई स्पिन एंड लो स्पिन दोनों का कैलकुलेट करते हैं. तो पहले CR D4 कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन का कर लेते हैं. तो हाई स्पिन का क्या होगा, ये है 1 2 3 4. तो इसका CFSE कितना होगा, CFSE is equal to T2G is having 3 electrons, so 3 into minus 0.4 delta 0 plus how many electrons are there in each orbitals, 1, so 1 into plus 0.6 delta 0. ठीक है, तो ये आपका हो गया है. इफ यू कैलकुलेट it will turn out to be minus 1.2 delta 0 plus 0.6 delta 0. तो obviously none of them are getting paired, no pairing energy is used. ठीक है, and then you will get minus 0.6 delta 0. And now what you have to do, you have to put the value of delta 0, and you see the value of delta 0 given is 13900. ठीक है, so this is minus 0.6 delta 0 into 13900. The unit is going to be in centimeter inverse. So this will turn out to be minus 8340 centimeter inverse. Clear? This is the CFSE of what? Of the high spin complex in the chromium 2 plus, which is having D4 configuration, right? Now let us consider the low spin. So low spin में क्या होगा, D4 1 2 3 4. तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएंगे, 1 2 3, and then the fourth one will get paired up. So in the case of the low spin complex, ठीक है, CFSE कितना हो जाएगा. Now see students, this is equal to 4. How many electrons are there? 4. 4 into minus 0.4 delta 0, ठीक है, प्लस P, क्योंकि यहाँ पे अभी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक, तो ये कितना हो गया, दिस विल टर्न आउट टू बी minus 1.6 delta 0 plus pairing energy. Now let's put the value of the delta 0 and the pairing energy given. They have given you the value of delta 0 as 13900 centimeter inverse. Clear? And pairing energy का वैल्यू कितना दिए गए थे, पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू दिए गए थे 23500 सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू है 235 सेंटीमीटर इनवर्स. नाउ लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ द पेयरिंग एनर्जी. दिस इज 23500 सेंटीमीटर इनवर्स. तो आपको टोटल ओवरऑल CFSE ऑफ द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कितना मिला आपको प्लस 1260 सेंटीमीटर. Now let's compare both of them. तो हमें हाई स्पिन, तो हमें क्या मिला, हमें दिए गए थे दैट डेल्टा 0 का वैल्यू है आपका कितना 13900 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू दिए गए थे आपका 23500 सेंटीमीटर इनवर्स. तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट से आप क्या देखोगे, थियोरेटिकल एस्पेक्ट से आप देखेंगे दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, द पेयरिंग एनर्जी जो है दिस इज व्हाट, द पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन द डेल्टा 0. अगर ऐसा है, इफ डेल्टा 0 इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर हाई स्पिन होना चाहिए. तो हमने कैलकुलेट किया किए, तो हमने देखा दैट हाई स्पिन का जो CFSE है उसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किए थे -8340 सेंटीमीटर इनवर्स. एंड लो स्पिन का हमने अभी कैलकुलेट किया, दिस इज CFSE.
is 1260 सेंटीमीटर इनवर्स। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ ट्रिक्स तभी पढ़ाई किए जाते हैं जब साइंस लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए हम साइंस समझेंगे। मैंने कहा हाई स्पिन स्टेबिलाइज्ड होना चाहिए, इसीलिए जो स्टेबिलाइज्ड हो रहा है उसका वैल्यू भी नेगेटिव में आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल गिव यू इंफॉर्मेशन दैट इट इज स्टेबिलाइज्ड, और लो स्पिन डिस्टेबिलाइज्ड है, इसलिए वैल्यू प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर आप दोनों का कंपेयर करते हो, इफ यू वांट टू कंपेयर विच वन इज मोर स्टेबिलाइज्ड, ठीक है, ऑब्वियसली इसका जो स्टेबिलाइजेशन एनर्जी है ये नेगेटिव है और ये स्टेबिलाइजेशन एनर्जी है विच इज एनफ मोर देन द स्टेबिलाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस, क्योंकि ये प्लस में है और ये डिस्टेबिलाइज्ड है। तो जो मेरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट था दैट अगर डेल्टा जीरो का वैल्यू is less than the pairing energy, the high spin will get stabilized, not the low spin, और वही मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके प्रूफ भी किया है कि exactly वैसे ही होता है। So therefore you can conclude that since delta zero is less than the pairing energy, the high spin complex now we see is more stable, both theoretically as well mathematically we have proved. Clear? This is very important that I proved to you. Now let us move on to the next problem. This is the problem number 2. The energy of hydration of Cr2 plus is given this, and the absence of CFSE delta H would be minus 435 kilocalorie per mole. Estimation of delta zero for this. Now see students, इसका मतलब क्या है मैं एक एक्सप्लेन करके देती हूँ. For example, you are having 10 books. ठीक है, you are having 10 books of physics, chemistry and biology. Total of 10 books. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ in absence of the chemistry books you are having 6 books, so you are having 6 books in absence of the chemistry books. यहाँ पे chemistry books missing है, तो कितना आपके पास chemistry books है, आप क्या करोगे, chemistry books कितना मिल गया, 10 minus 6. तो information में क्या क्या given है, ध्यान से देखो students, information में क्या क्या given है. The givens are, उन्होंने कहा that the energy of hydration they have given you minus 460 kilocalories per mole. This is the energy of hydration, total energy of hydration, right? In the absence of CFSE, it is minus 435 kilocalories per mole. So therefore CFSE कितना हो गया, CFSE कितना हो गया, हो गया आपको टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन जो कि ऐसा था minus 460, ये टोटल एनर्जी minus 435. ठीक है, लाइक जस्ट लाइक टोटल बुक्स आपका 10 था, इन द एब्सेंस ऑफ केमिस्ट्री बुक्स आपका कितना हो गया, टोटल -6, तो वही हुआ है. सो दिस विल टर्न आउट टू बी minus 25 kilocalories per mole. Clear? Now let us calculate, since in this case the complex is CrH2O62 plus and this water is a weak fill ligand. How is it so? I am definitely going to explain in my upcoming videos. And since water is a weak fill ligand, that is why you can say that this is a high spin complex. So यहाँ पे अगर high spin होगा तो 1 2 3 4, तो इसका CFSE कैलकुलेट कर लेते हैं. CFSE कितना होगा, this is having 3 electrons with energy minus 0.4 delta 0 and this is having 1 electron in the EG with energy plus 0.6 delta 0 and overall CFSE आपका आ जाएंगे minus 0.6 delta 0. तो देखो स्टूडेंट्स, हमें CFSE का जो वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा जो है
प्रॉब्लम्स का, वहाँ पे हमें कितना मिला CFSE का वैल्यू, हमें मिला -25 किलो कैलोरीज पर मोल, और फिर यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है उसका वैल्यू मिला है -0.6 डेल्टा 0. Clear? So over there it is very much clear to us that therefore what will happen? Therefore you have -0.6 delta 0 is equal to -25 kilocalories per mole. Clear? So therefore the delta 0 is equal to 25 by 0.6, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, विच इज इक्वल टू, अगर आप इसे ना, वन इंफॉर्मेशन इज देयर दैट इज 1 किलो कैलोरी per mole is equal to, you have to, it's better to convert it into centimeter inverse, 350 centimeter inverse. तो आपको ये किलो कैलोरीज में आ जाएंगे. इसका यूनिट आपका आ जाएंगे किलो कैलोरीज पर मोल, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में दिए थे, तो इट विल टर्न आउट टू बी 25 by 0.6 into 350 centimeter inverse, and this is equal to 14600 centimeter inverse. This is the answer. So this is the answer of the problem. Clear? So let's end the video over here only. I hope you like this video. Thank you for watching our video.